સુરતના ઉધના વિસ્તારના બમરોલી ખાતે સ્વામી વિવેકાનંદ શાળા આવેલી છે। આ શાળાના શિક્ષકો શાળા વિરુદ્ધ ગયા છે। શાળાના સંચાલકો દ્વારા શિક્ષકોની બેગ, પાસપોર્ટ સહિતના વસ્તુઓ જમા રાખી દીધી હોવાનો આક્ષેપ શિક્ષકે કર્યો હતો। એટલું જ નહીં પણ પોતાના ખાતામાં શાળા દ્વારા લાખોની હેરફેર કરી હોવાનો આક્ષેપ પણ શિક્ષકોએ કર્યો હતો। સુરતમાં જનતા દરબાર ચલાવતા દીપક પટેલ પાસે શિક્ષક આવી પોતાની આપવીતી કહેતા દીપક પટેલ દ્વારા સુરત પોલીસ કમિશનરને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। વાત એમ છે કે સુરતમાં ઉધના બમરોલી રોડ પર આવેલી સ્વામી વિવેકાનંદ શાળા દ્વારા શિક્ષકો સામે અન્યાય અને અત્યાચાર થતા હોવાનો આક્ષેપ ત્યાં જ નોકરી કરતા શિક્ષકોએ શાળા વિરોધ આક્ષેપ કર્યા હતા। સાથે એવા પણ આક્ષેપ કર્યા હતા કે એક જ શાળામાં બે શાળા ચલાવવામાં આવે છે, જેમાં પ્રિન્સિપાલ એક જ છે, બંને શાળા ચલાવે છે અને શાળા શિક્ષકો પર જુલમ કરતા હોવાનો આક્ષેપ તે જ શાળાના શિક્ષકે કર્યા હતા। એટલું જ નહીં, શાળા દ્વારા શિક્ષકની પાસબુક અને બેંકના અગત્યના ડોક્યુમેન્ટ શાળાની પોતાની કબજામાં રાખી લીધા છે, જેમાં શાળા દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે લાખો રૂપિયાનું ટ્રાન્ઝેક્શન કરે છે તેવા આક્ષેપ શાળાના શિક્ષકે કર્યા હતા। હું દીપક પટેલ ખાનગી પ્રાથમિક શાળા શિક્ષક સંઘનો પ્રમુખ છું। કોરોના લોકડાઉન પછી અમારા સમાજના અમારા શિક્ષકોની હાલત કેટલી ભયંકર દયનીય છે। હજારો શિક્ષકો નોકરીથી વંચિત થયા છે અને હજારો શિક્ષકોનો પગાર બંધ છે અને અસંખ્ય લોકોએ આપઘાત કર્યા છે। આ આપઘાત કરવા પાછળના કારણો તરફ હું આપણું ધ્યાન દોરું છું। સુરત શહેરમાં ઉધના વિસ્તારમાં 120 ફૂટ બમરોલી રોડ પર એક શાળા છે, એ ખાનગી શાળા છે। શાળાનું નામ છે સ્વામી વિવેકાનંદ વિદ્યાલય અને એ જ શાળાના મકાનમાં એક બીજી શાળા ચાલે છે, વીકે જૈન માધ્યમિક શાળા। આ શાળાના સંચાલક છે શ્યામ પ્રસાદ જૈન અને એમની દીકરી પ્રાથમિક શાળામાં પણ આચાર્ય છે અને માધ્યમિક શાળામાં પણ આચાર્ય છે। બહુ નવાઈની વાત છે કે એક વ્યક્તિ બબ્બે જગ્યાએ આચાર્યનો હોદ્દો ભોગવે છે અને દસ્તાવેજો બનાવે છે। હવે એ શાળામાં જે શિક્ષકો કામ કરે છે એ શિક્ષકોના ચેકબુક, પાસબુક શાળા સંચાલક પોતાના કબજામાં ગેરકાયદેસર રાખેલા છે અને એવા જ એક અમારા સાથી શિક્ષક નરેન્દ્રભાઈ વંજારી કે એમના ખાતામાં લાખો રૂપિયાની લેવડ દેવડ થઈને એ શિક્ષકે વિરોધ કર્યો, ત્યાર પછી એમનો 1 વર્ષથી પગાર બંધ છે। હાલ ભ્રષ્ટાચાર આચરનારા શાળાની અંદર છે અને એ શિક્ષક ગેટની બહાર બેસે છે। તો અમે લોકોએ આયકર વિભાગમાં, પીએફ કમિશનર કચેરીમાં, જિલ્લા કલેક્ટરમાં, પોલીસ કમિશનરમાં અને જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીમાં અને શિક્ષણ વિભાગમાં ફરિયાદ કરી, પરંતુ હજુ સુધી પરિણામ મળ્યું નથી। શિક્ષકને નરેન્દ્રભાઈને ઉધના પોલીસ સ્ટેશન વારંવાર બોલાવે છે, શાળા સંચાલકો ત્યાં આવે છે, પણ એમની એફઆઈઆર ફાળવવામાં નથી આવતી। જો આ એફઆઈઆર ફાળવવામાં આવે તો કરોડો નહીં લાખો રૂપિયાનો વ્યવહાર, આયકર વ્યવહાર, નાણાકીય લેતી દીધીનો ગફલો ઝડપાય એમ છે અને અમે આશા રાખીએ છીએ કે એક ચોર, એક ભ્રષ્ટાચારીને સજા થાય તો અન્ય ખોટું કરતાં રોકાય, શિક્ષણનો ધ્યેય હચવાય, શિક્ષણનો આદર સચવાય અને શિક્ષકોનું શોષણ અટકે, शिक्षकों की आत्महत्या अटके। जय हिंद। मेरा नाम नरेंद्र अवधूत वंजारी, मैं बीआरसी आवास में रहता हूँ और मैं स्वामी विवेकानंद विद्यालय में 1994 से नौकरी करता हूँ। सहायक शिक्षक की तरीके में नौकरी करता हूँ। ये स्कूल बमरोली रोड, पांडेसरा, उधना, सूरत में है। मुझे स्टार्टिंग में यानी प्रथम जो मेरी जॉइनिंग हुई थी तब मुझे रोकड़ा पगार दिया जाता था। ऐसे 6-7 साल हुआ, लेकिन बाद में मेरे संचालक श्री की बैंक में से फॉर्म लेके आए और बोले कि भाई सभी शिक्षक का तुम्हारा बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। सरकार ने नियम लगाया है कि तुम्हारा जो पेमेंट है, तुम्हारा वेतन है, ये बैंक से दिया जाएगा। मैंने बोला ठीक है। हम सभी लोगों ने जो पेपर लाए थे बैंक से उसमें साइन किया। फिर बाद में हम बैंक में तो नहीं गए, फिर बाद में हम नौकरी करते रहे। फिर हमने कहा कि भाई हमारा पेमेंट बैंक से नहीं हो रहा है, बैंक तो खोला गया है और रोकड़ा पगार दे रहे हैं, ये क्या बात हुई। तो संचालक जी से हमने कहा कि संचालक जी महोदय, हमारा बैंक खाता तो खोला गया है, लेकिन हमारा बैंक से पेमेंट क्यों नहीं होता है।
बोले बैंक से नहीं होगा, मैं आपको रोकड़ा देता हूँ ना, बैंक से जाने की क्या ज़रूरत है। तो हम चुप रहे। फिर 1-2 साल बाद में हमारे खाते में क्या हुआ, ज़्यादा रकम डालना, यानी 1 लाख 2 लाख ऐसे हमारे खाते में डालते थे। कभी हमें पता चलता था, कभी मैसेज आता था, कभी नहीं आता था। फिर हमने संचालक श्री से कहा कि संचालक जी, ये हमारे मिस कॉल आया था, इतना पैसा डाला है तो हमको टैक्स भरना पड़ेगा। तो नहीं ना, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं बैठा हूँ। तो ऐसे कहकर हमको बुला दिया। फिर बाद में 2 साल के बाद और मैसेज आ गया पैसे डालने का। तो फिर हमें लगा कि भाई अभी वो तो पैसे डाल ही रहे हैं। फिर हमने कहा कि भाई संचालक से हमारे खाते में पैसे डाल रहे हो, कभी ब्लैक मनी कर रहे हो, हमारा ब्लैक का वाइट कर रहे हो आप, लेकिन कभी हमको भविष्य में तकलीफ़ होगी। तो नहीं, बोले मैं बैठा हूँ ना, आप कोई चिंता नहीं करने का, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर बाद में 2019 में क्या हो गया, मेरे खाते में 2,80,000 रुपये डाले। 2,80,000 रुपये डाले। शाम को 7 बजे हमें मैसेज आ गया। मैसेज आने के बाद हमने देखा मोबाइल में कि भाई 2,80,000 डाले। और मैंने तो कहा था कि भाई मेरे खाते में डालने का नहीं। तो मुझे रात भर नींद नहीं आ गई। फिर मैं दूसरे दिन मेरे दोस्त के यहाँ गया। दोस्त को बोला, यार ऐसे ऐसे मेरे खाते में हेरा फेरी हो रही है, मेरा खाते का मिस यूज़ हो रहा है। तो 2,80,000 रुपये डाला है। वो 29 तारीख की बात थी, 29 मार्च। तो फिर मैं दोस्त ने कहा कि भाई देखो, सोच समझ कर करो, अभी तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर मैंने 30 तारीख को 2,10,000 रुपये मैंने निकाले। फिर आज तक से आपके साथ कितने बैंक में पैसे डाले और आपने कौन कौन जगह पे रिप्लेस की, पुलिस फरियाद हुई या नहीं हुई? आज तक हमारे खाते में 2010 से उसने चालना चालू किया। कभी 2 लाख, कभी 1.5 लाख, कभी बीच में भी डालते थे। यानी हर साल में 3-3 लाख, 4-4 लाख ऐसे पैसे डालते थे। फिर अभी आज हमारे साथ कोई शिक्षक है, ऐसे हमारे स्कूल के 5-6-7 शिक्षक है, उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है पैसे डालने का और निकालने का। कोई बोलते नहीं है। आज मैं उनके खिलाफ मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी के शिक्षक का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे शिक्षक के ऐसे है ट्रस्टी अपने सूरत में कि उसके खाते पर पैसे डालना, निकालना, रोकड़ा देना, ऐसा व्यवहार हो रहा है। इसके खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है। और इसीलिए मुझे मेरा जो शोषण हो रहा है, वो मुझे अन्याय हो रहा है, उसके लिए मुझे न्याय चाहिए। मैंने जिला कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब और जिला शिक्षा अधिकारी उनके मैंने अर्जी दाखिल की है। आप कौन से स्कूल में काम करते थे? मेरा स्वामी विवेकानंद विद्यालय है और दोनों स्कूल चलते हैं, एक वीके जैन, लेकिन मेरा जो स्वामी विवेकानंद में मैं मेरी नौकरी करता हूँ। आपने पुलिस फरियाद की है? मैंने पुलिस फरियाद की है, लेकिन 8 दिन हो गए। मैं जाता हूँ तो वो बोलते कि वो लोग कल आ रहे, तो आप कल आ जाने का। फिर मैं 2 दिन बाद बुलाया, फिर मैं गया तो वो लोग को आप फ़ोन करो, उनको बुलाओ। मैंने बोला मैं क्यों फ़ोन करूँ, वो तुम्हारा काम है, तुम्हारे कहने से आ जाएगा। तो फिर बाद में उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि भाई मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, कल आ जाऊँगा। फिर मैं वापस आ गया। फिर दूसरे दिन फिर मैं गया, तो फिर जाने के बाद बोले कि वो अभी नहीं, कल आ जाने का, वो आए नहीं है। तो ऐसे दिन निकल रहे हैं। हाँ, आप क्या चाहते हैं? मुझे न्याय चाहिए। मेरा जो शोषण हो रहा है अभी तक, ऐसा किसी के साथ, किसी शिक्षक के साथ नहीं होना चाहिए। ये शोषण हो रहा है, ये शोषण ख़त्म होना चाहिए। स्वच्छ भारत और सुंदर भारत चाहिए। और मैं नरेंद्र मोदी जी है, मैं भी नरेंद्र मोदी हूँ, और मेरी जो स्कूल है स्वामी विवेकानंद, ये भी नरेंद्र मोदी है। इसलिए नरेंद्र मोदी के साथ जो कहते हैं कि भाई किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, तो इसलिए नरेंद्र के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। मेरा शोषण नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, इसलिए मुझे न्याय चाहिए। વધુ માહિતી માટે જોતા રહો Z9 ન્યૂઝ અને અમારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો। નમસ્કાર।